Good morning, dear student. Today I will discuss about the volumetric efficiency and the real indicator diagram. This is the part of Unit 4, which is the reciprocating air compressor and the rotary compressor. And the subject name is Thermal Engineering Gas Dynamics, Semester 6. This is the outline of today's lecture, volumetric efficiency. What do you mean by the actual indicator diagram for the single stage, for the double stage, actual PV diagram, and what is the meaning of free air delivery. So this is the diagram in which the volumetric efficiency is represented. So volumetric efficiency, it is the ratio of the actual volume upon the theoretical volume. तो theoretical volume आपका जितना अंदर मिक्सचर में मैक्सिमम आ सकता है, it is depending on the cylinder dimensions, depending on the cylinder diameter and the piston stroke length, and the actual volume it is depending on the atmospheric condition कि वहां पे कितना नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर है उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑन द formulate base, that is the mass of air. It is represented here, mass of air to the mass of displacement air. कितनी displacement हो रही है air और free air conditions के हिसाब से, that is the ratio of that function. So volumetric efficiency is represented here and can be also defined in the volumetric form, volume form, that is the actual volume of air getting in the cylinder with respect to the free air condition, and the VD, that is the displacement volume of the cylinder. This is the ratio of between of them. So this is represented by the volumetric efficiency in the terms of mathematically, and here it is the mass and the volume bases are totally represented here. Then you can calculate mass of displacement, kitna displacement हुआ mass का, it can be calculated by this formula, that it is a P naught VD upon R T naught. This is the free condition, P naught and T naught, that is the free air conditions जो कि आपके एटमॉस्फेरिक पे डिपेंडेंट है. सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू द मास ऑफ एयर कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट T naught upon T naught. In terms of the rate, volumetric efficiency, that is the mass of air per kg per second के हिसाब से, because of in terms of rate यदि हम बात कर रहे हैं तो आपका टाइम भी आएगा. तो मास ऑफ एयर जो डॉट लगाया हुआ है ये आपका पर यूनिट टाइम के हिसाब से है. सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट मास कितना है ये भी टाइम के बेस पे है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर, ये भी आपका टाइम के बेस पे चल रहा है, तो मीटर क्यूब पर मिनट या मीटर क्यूब पर सेकेंड. Similarly here V dot D, that is the displacement volume कि पर सेकंड के हिसाब से कितना आपका आ रहा है या मिनट के हिसाब से कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है. So this is the diagram already told in the previous class. It is a PV diagram including the clearance volume also. Here the diagram is showing the all the processes. So 4-to-1 process, it is also represented in the previous class in the PV diagram. This is the suction 4-to-1, that is called a suction of air only at a constant pressure. It is considered in the hypothetically, in the actual case it is not a constant pressure air entering from the outside into the engine cylinder. 1 to 2 यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये आपका कंप्रेशन हो रहा है एयर का through the polytropic process, PV to power n is equal to C. This is the second process. When the piston is moving from the BDC to TDC, there will be a compression of air is taking place. 2 to 3, this is the discharge of air take place at a constant pressure, it is taking place. 3 to 4, it is the isentropic expansion. Here it is a process, isentropic expansion. So compression and the expansion both follow the law PV to power n is equal to C. And 4-to-1 again cycle is repeating. So there is a volume V1, this is the volume at point 1. V2, the volume at point 2 after the compression, 3-point volume at the point of discharging, 4-point volume at the entry from the atmospheric condition. तो यहाँ पे सारे वॉल्यूम आपके दिए हुए हैं according to the pressure. Here the pressure is constant, P1 is equal to P4. Here it is a pressure, lowest pressure, and the highest pressure at which the air will be compressed and the discharge air to the surrounding side, that is called a P2. Clearance volume is here, clearance volume यहाँ पे मौजूद रहता है, और स्विफ्ट वॉल्यूम जितने की एयर अंदर आ रही है, दिस इज द स्विफ्ट वॉल्यूम. इफेक्टिव स्विफ्ट वॉल्यूम यहाँ पे आपका रहेगा अंदर साइड पे, बिकॉज ऑफ द सम गैप इज मेंटेन्ड ड्यूरिंग द एक्सपांशन. यहाँ पे जब एक्सपांशन हो रहा तो गैप यहाँ पे कुछ मेंटेन है, और इफेक्टिव स्विफ्ट वॉल्यूम आपका ये है, दैट इज कॉल्ड V1 माइनस ऑफ V4.
and the total volume this is equal to the VC, this is the clearance volume plus of the swift volume। तो जो स्विफ्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम है इन दोनों का समेशन होता है टोटल वॉल्यूम, ठीक है ना। तो हियर द वॉल्यूमेट्रिक फॉर्म की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे, तो इफेक्टिव कितना स्विफ्ट वॉल्यूम आया है, कितना इफेक्टिव स्विफ्ट वॉल्यूम है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज द V1 माइनस ऑफ V4। और स्विफ्ट वॉल्यूम कितना इफेक्टिव आया है, स्विफ्ट वॉल्यूम आपका कितना थ्योरेटिकल चल रहा है। इफेक्टिव स्विफ्ट वॉल्यूम आपका डिपेंड करेगा फ्री एयर कंडीशन पे, और जो स्विफ्ट वॉल्यूम है वो डिपेंड करेगा आपका सिलेंडर डायमेंशन पे। तो सिलेंडर के डायमेंशन के हिसाब से V1 माइनस ऑफ V3 है, जो अंदर ज्यादा रहता है कंपेयरिंग टू द अंदर जितनी एयर आ रही है वॉल्यूमेट्रिक फॉर्म में। तो V1 minus of V4 that is the effective swift volume, and the swift volume that is the theoretical form V1 minus of V3, and the clearance ratio that is the clearance volume upon the swift volume, that is the ratio। तो clearance volume यहाँ पे कितना है ये देखना है, that is represented by the VC, and the VS is called the swift volume, it is represented by the VS। तो VC by VS that is called a one of the factor that is called is the gamma, and the volumetric efficiency it is not more than 85%, it lies between the 60 to 85%। so this is the ratio effective swift volume to the swift volume, that is called the volumetric efficiency, and it is not much more than the 85%। clearance ratio it value will be lie between of the 4 to 10%। okay, so this is the fundamental difference। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे। यदि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के फार्मूले पर डेवलप करना है उसके लिए हम काम करेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए जैसे हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे चीजें दिखाई दे रही हैं कि क्या इफेक्ट होता है क्लियरेंस वॉल्यूम का। तो क्लियरेंस एयर एक्सपांशन थ्रू द ग्रेटर वॉल्यूम बिफोर द इनटेक। तो आपकी जो क्लियरेंस एयर थी यहाँ पे, ये एयर जो है आपकी वो ज्यादा वॉल्यूम पे इनटेक करती है कंपेरिजन टू दिस वन। यहाँ पे इंटेक होना चाहिए था लेकिन ये ज्यादा वॉल्यूम पे आपकी एयर इंटेक कर रही है। तो सिलेंडर बोर एंड स्ट्रोक इज अ फिक्स, ये आपका फिक्स है सिलेंडर बोर एंड स्ट्रोक, इसको हम वेरी नहीं कर सकते हैं। तो इफेक्टिव स्विफ्ट वॉल्यूम दैट इज द डिक्रीमेंट विद द इंक्रीमेंट ऑफ द प्रेशर रेशियो। यदि इफेक्टिव स्विफ्ट वॉल्यूम आपका कम हो रहा है तो उसकी वजह सिर्फ ये एक ही है कि प्रेशर रेशियो बढ़ रहा है, और प्रेशर रेशियो में क्या होगा, ये डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ रहा है। तो इफेक्टिव स्विफ्ट वॉल्यूम को हमें कम कर रहे हैं तो प्रेशर रेशियो यहाँ पे हमारा बढ़ रहा है। तो डिक्रीमेंट ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इट इज द लॉस ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो फॉर द इंप्रूविंग ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इफेक्टिव स्विफ्ट वॉल्यूम को ज्यादा होना चाहिए, प्रेशर रेशियो कम होना चाहिए, तब आपकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ेगी। जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए आप, यहाँ पे भी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम हो रही है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को यदि आपको बढ़ाना है तो इफेक्टिव स्विफ्ट वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर रेशियो कम होगा, उससे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी। तो आपका इफेक्टिव स्विफ्ट वॉल्यूम दैट इज द V1 माइनस ऑफ V4, जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है V1 माइनस ऑफ V4, एंड द इफेक्टिव स्विफ्ट वॉल्यूम only the swift volume which is the actual केस में कि जो अंदर आ रहा है that is the swift volume V1 minus of V3। तो V1 minus of V3 plus V3 minus of V4 ऊपर वाली इक्वेशन को इस तरीके से हम लिख सकते हैं। सिमिलरली V1 minus of V3, तो यहाँ पे इसका फायदा क्या होगा, ये आपके कैंसल्ड आउट हो जाएंगे, दिस इज द कैंसल्ड आउट, तो ये आपका 1 आ गया, प्लस V3 अपॉन V1 माइनस ऑफ V3 ये फैक्टर आ गया, माइनस V4 अपॉन V1 माइनस ऑफ V3 आ गया। तो हियर 1 प्लस V3 बाई V1 माइनस ऑफ V3 ये आपका आ गया, माइनस ऑफ V4 अपॉन V1 माइनस ऑफ V3 इंटू V3 बाई V3, ऊपर और नीचे आपने यहाँ पे गुणा और भाग कर दिया, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड कर दिया, तो इससे आपको कुछ यहाँ पर रिलेशन मिलेगा जैसा जो कि हमने यहाँ पे किया। तो 1 प्लस V3 अपॉन V1 माइनस ऑफ V3 माइनस ऑफ V3 यहाँ पे कर दिया अपॉन V1 माइनस ऑफ V3, और दिस इज द क्लियरेंस रेशियो ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस स्लाइड। V4 बाई V3 जो था वो आपका क्लियरेंस रेशियो था, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा V4 बाई V3, ठीक है ना। तो V3 अपॉन V1 माइनस ऑफ V3, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ेंगे तो आपको सिंप्लीफिकेशन के रूप में चीजें दिखेंगी। तो दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड in which the proceed from the previous slide। 1 plus V3 जो आपको मिला था अपॉन V1 माइनस ऑफ V3, 1 माइनस ऑफ V3 बाई V4 ये आपका हो गया, 1 माइनस ऑफ V3 अपॉन V1 माइनस ऑफ V3 इनटू द ब्रैकेट ऑफ, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सिमिलरली 1 माइनस ऑफ V3 अपॉन V1 माइनस ऑफ V3, ये जो V3 बाई V4 है ये आपका एक्सपांशन रेशियो के फॉर्म में है और आइसेंट्रोपिक रूल को फॉलो कर रहा है। तो आइसेंट्रोपिक रूल के हिसाब से इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं P3 बाई P4
to the power 1 by n, क्योंकि आपका ये जो रूल फॉलो होता है that is called a PV to power n is equal to, that is the PV power n is equal to constant, ठीक है ना। तो P3 by P4 की पावर 1 by n minus of 1, that is volumetric efficiency 1 minus gamma into bracket of P3 by P4 to the power of 1 by n minus of 1. Actual indicator diagram for the single stage reciprocating compressor, यहाँ पे एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम है जिसमें कि आप देख रहे हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पे सक्शन ना होके थोड़ा सा कम प्रेशर पे सक्शन हो रहा है। यहाँ पे सक्शन की जो स्टार्टिंग है, कंप्रेशन की स्टार्टिंग यहाँ पे हो रही है, थोड़ा सी पॉइंट नीचे आ गया है, आप देख रहे हैं पहले सी पॉइंट यहाँ पे होता था लेकिन सी पॉइंट नीचे आ गया है ड्यू टू द प्रेशर लॉस, ड्यू टू द फ्रिक्शनल लॉस, ड्यू टू द वॉल्व इनर्शिया, जिसके कारण से कि प्रेशर लॉस हो रहा है। एंड आफ्टर दैट कंप्रेशन नॉट फॉलो द पीवी टू पावर n इज इक्वल टू सी, इट फॉलो द एनी अदर लॉ। कंप्रेशन जरूरी नहीं कि पीवी पावर n इज इक्वल टू सी को फॉलो करे। एंड आफ्टर दैट व्हेन वी मूविंग फ्रॉम द कंप्रेशन, द डिस्चार्जिंग वॉल्व हियर इट इज द कंटिन्यूअसली ओपन, या बोलना चाहिए जो कंप्रेशन है वो कंटिन्यूअसली डी पॉइंट तक हो रहा है। एंड डिस्चार्जिंग इज टेकिंग प्लेस ओवर द above the atmospheric pressure or above the this pressure line. This is the base discharge line, but above the this pressure line यहाँ पे discharging हो रही है, तो this is the above the pressure। तो ज्यादा प्रेशर पे यदि discharging करेंगे तो उस केस में हो सकता है ज्यादा प्रेशर पे यदि आप डिस्चार्जिंग करेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम हो जाए, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ये चीजें। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं फिर फर्दर एक्सपांशन हो रहा है। एक्सपांशन डज नॉट फॉलो आल्सो द हियर not a polytropic rule. This is the clear in for the single stage. Suppose that if the compression is follow the more than one stage, यदि कंप्रेशन एक से अधिक स्टेज पे हो रहा है तो उस केस के लिए एक्चुअल पीवी डायग्राम क्या रहेगा वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो 2 स्टेज में कंप्रेशन यदि करते हैं तो यहाँ पे 2 सिलेंडर पिस्टन होते हैं। पहला आपका होता है लो प्रेशर जिसे बोलते हैं एलपी सिलेंडर, और दूसरा होता है हाई प्रेशर। यहाँ पे हाई प्रेशर आप देख रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेज कंप्रेशन यहाँ पे है, सेकंड स्टेज कंप्रेशन यहाँ पे है। तो सेकंड स्टेज कंप्रेशन में भी आप देख रहे हैं कि जो प्रेशर लॉस वगैरह हो रहे हैं जो कि कम प्रेशर पे हो रहा है, जो कि यहाँ पे ज्यादा प्रेशर पे हो रहा है, दिस इज द ड्यू टू द प्रेशर लॉस, ड्यू टू द वॉल्व इनर्शिया, ड्यू टू द वॉल्व नॉट ओपनिंग एट अ टाइम एंड द वॉल्व इनर्शिया एंड फ्रैक्शनल लॉसेस, जिसके कारण से कि प्रेशर की वैल्यू कम या ज्यादा हो रही है। तो दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर पे हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं P1 जो प्रेशर है वो कम प्रेशर है। सिमिलरली हियर द इंटरमीडिएट प्रेशर P2, जिसको कि हम इंटरकूलिंग बोल रहे हैं, ये आपका इंटरकूलिंग हो गया। और ये आपका डिस्चार्जिंग प्रेशर से ज्यादा प्रेशर है, P3 इज मोर देन द डिस्चार्जिंग प्रेशर। तो ये सेकंड स्टेज कंप्रेसर के लिए डायग्राम हो गया। This is the next slide in which the actual PV diagram is showing, already discussed in the previous slide. तो एक्चुअल पीवी डायग्राम यहाँ पे हो रहा है कि जो सक्शन है वो कम प्रेशर पे हो रहा है, वॉल्व बाउंस उसको बोल रहे हैं, और यहाँ पे जो रिसीवर प्रेशर है वो ज्यादा है। तो रिसीवर प्रेशर ज्यादा होने से और वॉल्व बाउंस होने से यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है वो कम होती है, क्योंकि प्रेशर रेशियो की वैल्यू कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। यदि प्रेशर रेशियो की वैल्यू बढ़ेगी तो उस केस में यहाँ पे अपने पास वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम हो जाएगी। यहाँ पे इंटेक डिप्रेशन इसका नाम देते हैं, इंटेक डिप्रेशन है। तो एट पॉइंट 4 इनलेट वाल्व डज नॉट ओपन ड्यू टू 2 रीजन है इसके पीछे। देयर मस्ट बी ए प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द वाल्व टू ओपन। एक रीजन ये है प्रेशर डिफरेंस इतना नहीं रहता है कि वाल्व ओपन हो पाए। दूसरा है इनलेट वाल्व इनर्शिया। इनर्शिया वाल्व का एक बहुत बड़ा पैरामीटर रहता है जिसकी वजह से वाल्व टाइम पे ओपन नहीं हो पाते हैं। तो प्रेशर ड्रॉप कंटिन्यूअसली टिल सफिशिएंट लेवल फॉर वाल्व टू फोर्स इट टू सीट। वाल्व को उसकी सीट से उठाने के लिए हमें कुछ प्रेशर डिफरेंस करना बहुत जरूरी है, जैसे कि वाल्व बाउंस के नाम से बोलते हैं। इट इज सेट इन द वेवी लाइन, जो आप देख रहे हैं ये आपकी वेवी लाइन है, दिस इज कॉल्ड अ वेवी लाइन। And eventually the pressure set down at a level lower than the atmospheric pressure. The negative pressure difference is known as the intake depression. जो negative pressure difference बन रहा है वो intake depression कहलाता है। Similarly, situation appears at point 2
एट द स्टार्ट ऑफ डिलीवरी, यहाँ पे डिलीवरी स्टार्ट हो जानी चाहिए पॉइंट 2 पे, लेकिन डिलीवरी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो प्रेशर राइज फॉलोड बाय द वॉल बाउंस, वॉल बाउंस हो रहा है, देन प्रेशर सेटल्स एट ए लेवल हायर देन द डिलीवरी प्रेशर लेवल। यहाँ पे प्रेशर लेवल जो है आपका बढ़ता चला जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रेशर आपका कम होना चाहिए, लेकिन ज्यादा प्रेशर पे एयर की डिलीवरी हो रही है। तो एयर डिलीवरी टू टैंक रिसीवर हैंस जनरली नोन एज अ रिसीवर प्रेशर। तो रिसीवर प्रेशर इट इज मोर देन द रिक्वायर्ड प्रेशर, तो जिसके कारण से कि यहाँ पे लॉसेस हो रहे हैं। तो दिस इज द एक्चुअल पीवी डायग्राम, जहाँ की सारी वर्किंग एक्चुअल तरीके से दिखाई गई हैं। हाइपोथेटिकल में ऐसा नहीं होता है, हाइपोथेटिकल में सारी चीजें क्लियर रहती हैं। तो इट इज अ फ्री एयर डिलीवरी स्लाइड इन विच द रीड अबाउट द व्हाट इज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर, कितनी एक्चुअल एयर जो है वो डिलीवर हो रही है। तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर बाय द कंप्रेसर व्हेन इट इज रिड्यूस्ड टू द एम्बिएंट प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन। जब कभी एम्बिएंट प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन को रिड्यूस कर दिया जाता है, तब कितना एक्चुअल वॉल्यूम आपका डिलीवर हो रहा है ये देखने लायक रहता है। इट इज एक्सप्रेस इन एंड रिप्रेजेंट द कैपेसिटी ऑफ कंप्रेसर। इसको हम कैपेसिटी ऑफ कंप्रेसर के नाम से जानते हैं। तो कैपेसिटी ऑफ कंप्रेसर की एयर की डिलीवरी किस प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन पे हो रही है। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि एफएडी को रिड्यूस करते हैं, लेस देन द स्विफ्ट वॉल्यूम एंड वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। कौन कौन से पैरामीटर है जो कि स्विफ्ट वॉल्यूम को कम कर रहे हैं और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम कर रहे हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को जो कमजोर कर रहा है वो उसमें सबसे पहला है क्लियरेंस वॉल्यूम का होना। क्लियरेंस वॉल्यूम जितना ज्यादा होता है उतनी कम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है। अब ड्यू टू द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, मेट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अपने को ये चीजें मेंटेन करना जरूरी भी है। यदि हम क्लियरेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो जो आपका पिस्टन है वो सिलेंडर हेड से डैमेज हो सकता है। द थ्रॉटलिंग ऑफ एयर व्हेन इट इज पासेस, ये एक दूसरा पैरामीटर है। थ्रू द इनलेट एंड आउटलेट वाल्व, थ्रॉटलिंग होनी भी एयर की बहुत जरूरी है। यदि थ्रॉटलिंग नहीं होगी तो वाल्व ओपन नहीं हो पाएंगे। हीटिंग ऑफ इनकमिंग एयर, जो एयर अंदर आती है एटमॉस्फेरिक से, तो अंदर आते वक्त पैसेज के थ्रू वहां पे हीटिंग हो जाती है एयर की, जो कि एक फ्री एयर डिलीवरी के कारण नुकसान है। और दूसरा ये है कि वहां पे फिर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी या स्विफ्ट वॉल्यूम प्रॉपर नहीं मिल पाता है। लीकेज की एक प्रॉब्लम बनी रहती है। तो लीकेज इज द अनदर एस्पेक्ट जिसमें कि प्रॉब्लम बनी हुई है, और उससे हमारे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के लॉसेस जुड़े रहते हैं। तो फ्री एयर डिलीवरी के लिए यहाँ पे आपको फार्मूलेटेड मैथमेटिकली फॉर्म के फॉर्म में दिखाया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं free delivery if the volume of the air compressor is reduced to the atmospheric temperature and pressure, this volume of air is called a free air delivery meter cube per minute. Delivery mass of air that is equal to the intake mass of air. So delivery mass of air that is called a pt vt by tt, और जो intake mass of air है that is p1 v1 minus of v4 t1 is equal to p2 v2 minus of v3 upon t2. This is the फार्मूला। इफ द क्लियरेंस वॉल्यूम इज नेग्लेक्टेड, यदि क्लियरेंस वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो पीटी वीटी बाई टीटी जो आपका थ्योरेटिकल वाला है इट इज इक्वल टू P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। तो यहाँ पे क्लियरेंस को कंसीडर किया गया था, VC इज कंसीडर, VC को लिया गया, VC इज टेकन, ठीक है, VC की वैल्यू को कुछ लिया गया है, VC इज टेकन, और यहाँ पे जो है VC जो है वो आपका कंसीडर 0 है। यहाँ पे VC की वैल्यू को हमने 0 ले लिया। तो जब VC की वैल्यू 0 हो गई तब ये क्या बन गया, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। और जो PT और TT की वैल्यू है जो कि थ्योरेटिकल वैल्यू रहती है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पे, वो आपकी यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है 101.325 किलो न्यूटन पर मीटर, दैट इज द वन एटमॉस्फेरिक 1 बार, ऑलरेडी नोन दैट। एंड TT की जो वैल्यू है थ्योरेटिकल वाली ये है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि 288 केल्विन रहती है। So this is the today lecture. If you have any doubt, please ask.